सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लेक्चर जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 2014 का CSAT पेपर. सो इट्स गोइंग टू बी अ मॉक टेस्ट बेसिकली, एंड व्हाट वी गोना डू हियर इज़ वी गोना स्टार्ट विद आवर टाइमिंग्स. हम लोग टाइम सेट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर. सो how it will help you is you will get to know कि how can you answer the questions in real time scenario जहाँ पे आपका एग्ज़ाम चल रहा हो. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि आंसर कैसे करेंगे एंड कैसे टाइम में कंप्लीट कर लेंगे. तो उसी चीज़ को हम लोग को एग्ज़ाम में बैठ के हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, उसी के लिए मैंने आपके लिए ये एक सेशन आज रखवाया था. तो ये 2014 का CSAT का पेपर है. मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार. 2014 का है ये. या 2014 का CSAT का पेपर है. एंड एज यू कैन सी एंड एज यू गो डाउन इट्स अ नॉर्मल CSAT पेपर जहाँ पे पूरे कॉम्प्रीहेंशंस हैं, सब कुछ है. तो हम लोग इसको 2 घंटे का नहीं रख के व्हाट वी गोना डू इज़ हम लोग इसको 1 घंटे में जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकें उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे. और लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इसको 2 घंटे का ही रखते हैं. ओके, सो इट्स 1:15 नाउ. वी स्टार्ट एट 3 वी स्टार्ट एट 1:18 एंड वी कंप्लीटेड एट 2:18 3:18 के आसपास हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे. एंड आप बने रहिए वीडियो में, देखते कितने सही हमारे क्वेश्चंस हो पाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं यहाँ पे टाइमर सेट कर देता हूँ एक बार. क्या एक काम करते हैं, आज हम लोग 1 घंटे में ही करते हैं इसको. दैट वुड बी बेटर, क्योंकि 2 घंटे का थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा. फ़ोन में भी बैटरी थोड़ी सी कम है, लैपटॉप में भी चार्ज थोड़ा सा कम है. तो एक काम करते हैं, इसको 1 घंटे का ही करते हैं. 1 घंटे में देखते हैं कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं. एंड उस बेसिस पे अगर 1 घंटे में हम लोग ने 50 या 30 के करीब या 40 के करीब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इट्स वेल एंड गुड. सो विदाउट गेटिंग डिलेड, सो आई एम स्टार्टिंग आवर टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. So the first passage, it talks about your yeah. So the subject of democracy has become severely muddled because of the way rhetoric surrounding it has been used in the recent years. Okay, so I'll just go through the options first. काफ़ी बड़ा passage है. So question क्या पूछा है, which of the is closest to the view of democracy as mentioned in the passage. Okay, the subject of democracy is a muddle due to desire to portray it as a Western concept alien to the non-Western countries. View of democracy, तो I don't think view of democracy ऐसा कुछ हो सकता है कि इसका subject of democracy is muddled due to a desire to portray it as a, no, I don't think so. The language of imposition of democracy is inappropriate. There is, however, a need to consider this concept in the backdrop of culture of one ways of non-Western society. हो सकता है. While democracy is not essentially a Western idea belonging exclusively to the West, the institutional structure of current democratic practices have been their contributions. Okay, D तो हो नहीं सकता, either of them two होगा. पढ़ लेते हैं इसको फटाफट. The subject of democracy has become severely muddled because of the way the rhetoric surrounding it has been used in the recent years. This is increasingly an oddly confused dichotomy between those who want to impose democracy on other countries in non-Western world. In the these countries' own interests, of course, and those who are opposed to such imposition because of the respect for the country's own ways. But the entire language of imposition used by both the sides is extraordinarily inappropriate, since it makes the implicit assumption that democracy belongs exclusively to the West, taking it to be quintessential Western idea which has organized and flourished only in West. But the thesis and the pessimism it generates about the possibility of democratic practice in the world would be extremely hard to justify. There were severe experiments in local democracy in ancient India,
Indeed, in understanding the roots of democracy in the world, we have to take an interest in the history of people participating. We would fail to understand the pervasive demands of participatory living in Aristotle spoke. सो आप एक पेपर ले लीजिएगा, याद रखिएगा जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, एंड आंसर आप उसमें 1 2 3 4 करके लिख दीजिएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन मैंने लिखा था, क्वेश्चन का आंसर लिखा था. जैसे ये 1 का आंसर मुझे लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द व्यू ऑफ डेमोक्रेसी एज मेंशन्ड इन द पैसेज. द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज मॉडल ड्यू टू वेस्टर्न डिज़ायर टू पोर्ट्रे इट एज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एलियन टू. नहीं, इट्स नॉट, ऐसा नहीं. It cannot, of course, be doubted that the institutional structure of fundamental practice of democracy is largely the product of the European and American experience over the last few years. This is extremely important to recognize since those were immensely innovative. Can be little doubt that there is a major Western achievement. The language of imposition of democracy is inappropriate. There is, however, a need to consider this concept in the own ways of democracy, not essentially a Western idea belonging exclusively. Yeah. Which of the following is closest to C? 1C. अपना लास्ट पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी है कि आप अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा आपको, मगर ये लास्ट पैराग्राफ में यही है, यही बात इन्होंने दोहरा रखी है ये वाले पैराग्राफ में. It cannot, of course, be doubted that the institutional structures of the contemporary practice of democracy is largely a product. तो product है यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सपीरियंस का, क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट्स करे हैं इन द इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट्स और बहुत ही इनोवेटिव एंड अल्टीमेटली इफेक्टिव भी थे. देयर कैन बी नो डाउट दैट देयर इज़ अ मेजर वेस्टर्न अचीवमेंट हियर, बट साथ ही साथ ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ उन्हीं का ही हाथ है, इंडिया में भी पहले से डेमोक्रेसी थी. एनीवेज, with the reference to passage, the following assumptions have been made. Many of the non-Western countries are unable to have democracy because they take democracy to be specialized cultural product of West. Western countries are always trying to impose democracy on. Okay, so we leave this. थोड़ा सा ही complicated सा है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं. अच्छा, ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा देख लेते हैं. Company should always comply with labor and tax laws of the land. Always. अच्छा, ये extreme statement है, तो always के बारे में थोड़ा देख लेंगे इसको. Every company in the country should have government representative as one of the independent directors. Every company in the country should have government representative. Should have government representative as one of the independent directors on the board to ensure transparency. अच्छा, okay. And the manager of the company should never invest his personal funds in the company. Assumptions पूछ रहा है ना, देखते हैं चलो. Corporate governance is based on the principles such as conducting the business with all integrity and fairness, being transparent with regard to all the transactions, making all the necessary disclosures, all the laws of the land, and accountability and responsibility towards the stakeholders, and commitments to conducting business in an ethical manner. Another point which is highlighted on corporate governance is the need for those in control to be able to distinguish between what are the personal and cooperative funds while managing company. Fundamentally, there is a level of confidence that is associated with many company that is known to have good cooperative board. Cooperative for those who control the distinction between what are known to be one of the criteria for designing on which comes.
I think three is company should always comply with labor and tax laws of the. ये तू तो कहीं नहीं बोला है कि हर एक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये भी बोला गया यहाँ पे कि कंप्लाई करना चाहिए एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड नेवर इन्वेस्ट हिज पर्सनल फंड्स। अनदर पॉइंट विच हाईलाइटेड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीड टू कंट्रोल व्हाट आर पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड व्हाइल मैनेजिंग द कंपनी। 1 and 3 है लग रहा, 3C। आगे चलते हैं। Benefits of the following these are the major benefits leads to increase in share price of a company with good cooperative governance always increases its business turnover always good corporate governance is main criteria for it's one of the criteria main criteria नहीं यहाँ बोला गया आप देख सकते हो कि यहाँ पे however clean image on the corporate government's front should make it easier for the companies to source capital at more reasonable cost। नहीं ये वाली लाइन corporate government is known to be the criteria that to be one of the criteria not the only criteria foreign institution investors are increasing depending तो one of the criteria only criteria नहीं है तो good corporate is the main criteria नहीं है one of the criteria 3 is wrong good corporate leads to increase in share price of a company with good corporate governments A 4A। आगे चलते हैं। मैल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा बोला गया मैल न्यूट्रिशन मोस्टली कॉमन अकर्स द एज ऑफ 6 months and 2 years। अच्छा according to the passage malnutrition in children can be reduced if children have regular intake of food after they cross the age of 5 can be reduced। ये क्या बात हुई आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 5 तो कैसे रिड्यूस होगा इफ़ द फूड नीड्स ऑफ द younger children are known if the responsibility of feeding younger children is given to adult no if the food needs of younger children are known तो यही है malnutrition most commonly occurs between the ages of 6 months and 2 years this happens despite the children's requirement of being less than that of the older child malnutrition often attributed to poverty but it is found that even in households where adults eat adequate quantity children under the 5 do not consider the child's dependence on someone else to feed him or her primarily is very often the mother is working and the responsibility of feeding the younger child should increase awareness regarding the child's food needs and how to satisfy them okay उसकी needs के बारे में जानने की बात करिए कहाँ चले गए यही होता है जब ऐसे टेस्ट पेपर देते हैं ना इसलिए यूपीएससी नहीं करवाता so it's responsible for feeding the if the child's regular intake of food or the needs of the children are known 5C malnutrition in children can be reduced कैसे reduce करे जाएंगे जब उसकी needs को पता चल जाएगा according to the author poverty is not the main cause of malnutrition but the fact that taking care of younger ones is not a priority for working mothers no ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है it's a priority but वो नहीं ले पाती हैं क्योंकि काम करती हैं awareness of nutritional needs is not propagated by public health authorities awareness nutritional needs is not propagated by
अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज़ नॉट प्रोपोगेटेड, ये हो भी सकता है, ये फर्स्ट पार्ट तो सही है, बट यहाँ पे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। मेन कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन कि वो लोग बताते नहीं है। वैसे देखा जाए तो सही बात बोल रहा है, बट ऑथर ने कहीं ये बोल नहीं रखा कि पब्लिक हेल्थ इट इज़ देयरफॉर क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस। अच्छा रिगार्डिंग, ठीक है, तो 6B अवेयरनेस की बात कर ली ना यहाँ पे। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज़, ओके काफ़ी बड़ा है यार ये तो। अच्छा ना 7-8 क्वेश्चन बन रहे। द नीड टू फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन इज टू मिटिगेट रिस्क इन एग्रीकल्चर इज बिकॉज, अच्छा पॉवर्टी इंटरवेंशन क्यों करना है एग्रीकल्चर के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क अवर्स, फार्मर्स डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट रिस्क, ये तो गलत है। द मेथड्स अडॉप्टेड बाय फार्मर्स एंड एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एडिक्वेट, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर डिपेंड्स ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर, तो C and D हो सकता है। लेट्स कीप 7C, मैं पैसेज पढ़ूंगा बाद में, 7 और D को मार के चल लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इमर्ज, क्योंकि लॉजिकल सी बात रख ली है, फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिस्क अवर्स, एक्सट्रीमली रिस्क अवर्स तो नहीं हो सकता ना, कैसे रिस्क अवर्स है, रिस्क है उनके ऊपर। फिर उसके बाद फार्मर्स डू नॉट नो, उनको पता तो है, तो ये थर्ड वाला बहुत लॉजिकल एंड करेक्ट एंड ओवरऑल मतलब होलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है। अगला देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग observations emerges from the above passage? One can identify a single policy that can reduce risk without, which of the following observations emerges from the above passage? अच्छा क्या observation निकल के आ रहा है? One can identify a single policy that can reduce रिस्क विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ही पॉलिसी है और वो सारे रिस्क को उसमें साइड इफेक्ट भी ना हो। नो सिंगल स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस, हाँ बिल्कुल। पॉलिसी विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट इट, पॉलिसीज विच इफेक्ट risk indirectly, government policy intervention can mitigate agricultural risk, नहीं, no single policies which affect risk indirectly, जो indirectly अफेक्ट करते हैं इसको वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नहीं 8B आंसर है इसका तो 100% श्योर, बट फिर ये पैसेज पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। The primary group is relatively smaller in size. Consider following statement. Intimacy is an essential characteristic of primary group. A family may be example of a primary group. In the light of the above statement, which of the following is true? All families are primary group. All primary groups are families. अच्छा ये अगला अलग ही statement हो गया। A group of smaller size is always a primary. A group is relatively smaller in size. Intimacy is an essential characteristic of primary group. A family group, a family may be example of, all families are, a family हो सकती है, all families तो नहीं बोला ना, all primary groups are families, ज़रूरी नहीं है। A group of smaller size is always a primary group, हाँ a primary group is relatively smaller in size, तो ये बोला गया है। Member of primary group know each other intimately, देख लेते हैं एक बार इसको, C लग रहा है मुझे तो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो 9C, हाँ 9C होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया प्राइमरी ग्रुप रिलेटिवली स्मॉलर होता है और इंटीमेसी एसेंशियल होती है इस प्राइमरी ग्रुप में, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड फैमिली में भी एक स्मॉल फैमिली इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो सारी फैमिली प्राइमरी ग्रुप में ज़रूरी नहीं है, सारी प्राइमरी ग्रुप फैमिलीज है वो भी ज़रूरी नहीं है। मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स नो ईच अदर इंटीमेटली, ये भी ज़रूरी नहीं है। इंटीमेसी इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप। तो स्मॉलर साइज रिलेटिवली स्मॉलर जब बोला गया है यहाँ पे तो ठीक है, ऑलवेज थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, बट जनरली ये आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। थोड़ा ऊपर चलते हैं। A number of empirical studies find that farmers are risk averse though only moderate in case, तो risk averse है और moderate है केस में, moderately है इन केस में। There is also evidence to show that farmers risk aversion results in cropping patterns and input use designed to reduce risk rather than to maximize income, तो इनका जो risk aversion का जो रिजल्ट है क्रॉपिंग पैटर्न में एंड इनपुट में ये डिज़ाइन किया गया है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, लाके इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड कोप विद एग्रीकल्चर रिस्क, दीज इंक्लूड प्रैक्टिस लाइक क्रॉप एंड फील्ड डाइवर्सिफिकेशन, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। अच्छा तो ये बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके से फार्मर अपना रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, हेजिंग कर सकता है बेसिकली। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, स्टोरेज, स्टॉक्स, स्ट्रैटेजिक माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स,
There are also institutions ranging from shared tenancy to kinship, extended family, and informal credit agencies. One major obstacle to risk sharing by farmers is that the same type of risk can affect large number of farmers in the region. और एक मेजर ऑब्स्टिकल क्या आता है रिस्क शेयरिंग में बाय फार्मर्स इज दैट एक तरह का रिस्क बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर सकता है. एम्पेरिकल स्टडी शो करती है कि ट्रेडिशनल मेथड एडिक्वेट नहीं है, हेंस देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन, स्पेशली मेजर दैट कैन कट अक्रॉस जोग्राफिकल रीजन्स. ओके, पॉलिसीज एम कर सकती हैं टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एग्जांपल्स क्या हैं ऑफ रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसीज आर क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, प्राइस स्टेबलाइजेशन हो गया, एंड डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स हो गया एंड डिजीज़ हो गया. पॉलिसीज़ विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली आर क्या क्या है, इरीगेशन, सब्सिडाइज क्रेडिट एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो गया. उसके बाद नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस द रिस्क एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड इज विदाउट साइड, वेयर एज पॉलिसी इज नॉट स्पेसिफिक टू रिस्क इन्फ्लुएंस द जनरल सिचुएशन एंड अफेक्ट द रिस्क ओनली इनडायरेक्टली. तो ये तो बात सही लिखी है ना, ये वाली पॉलिसीज विच अफेक्ट द रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट. नहीं, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़. नो सिंगल पॉलिसी रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट, तो सफिशिएंट नहीं है कोई भी एक पॉलिसी जो रिस्क को कंट्रोल कर सके और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो. तो ये भी बात नो सिंगल रिस्क पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चर रिस्क, बिल्कुल सही बात है. वन कैन आइडेंटिफाई द सिंगल पॉलिसी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है. तो ठीक है, 8 का बी आंसर है. एंड 7 का देख लेते हैं. द मेथड्स adopted by farmers and existing risk sharing institutions are not adequate, बिल्कुल सही बात है. फार्मर्स डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट, तो ऐसा तो नहीं है मिटिगेट नहीं आता, आता तो है बट वो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट है उनके पास. फार्मर्स आर एक्सट्रीमली तो नहीं है, दे आर रिस्क कवर्स, एक्सट्रीमली रिस्क कवर्स नहीं है. सो 7 इज सी एंड 8 इज़ बी. ये मैं आपको जब आगे हम लोग पेपर को अच्छे से इवेल्युएट करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे मैंने इस आंसर को डिराइव किया. इंग्लिश है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है बहुतों को, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा. क्रक्स क्या है, बोलना क्या चाहते हैं, 100 बात की एक बात जो शुभ्रा मैम बोलती है वही है. प्राइमरी ग्रुप वाला हो गया, आगे चलते हैं. 4 friends ABCD distribute some money among themselves in such a way that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D, and D gets 3 more than B. Who gets the smallest? Okay, जस्ट मैं टाइम देख लेते एक बार. अच्छा, 20 मिनट हो ही गए. 20 मिनट में अपने 10 क्वेश्चन भी नहीं बने. सो अगर मैं इसको बोलूँगा, सॉल्व करके दिखाता हूँ. 4 friends ABCD distribute some money among themselves in such a way that A gets 1 less than B. B से या B प्लस, अच्छा, A B plus 1 such that manner A gets 1 less, या A minus 1 कर लो is equal to B. A minus 1 कर लो लेस देन B, ठीक है. B प्लस 1 कर लो, कुछ भी कर लो, उधर आ जाएगा इधर. B, C gets 5 more than D. C gets 5 more than D. Yeah, D gets 5 more less than C. And D gets 3 more than B. D gets 3 more than B. D gets 3 more. अच्छा, एक मिनट. 3 more than B, ठीक है. तो 3 more than B या उधर कर ले. तो अगर B का अपने को पता है, B क्या है, B इज इक्वल टू A minus 1, और D क्या है, तो एक को कॉमन में ले आते हैं ना. D is equal to C minus 5. Who gets the smallest? D gets 3 more than B. Suppose 10 है. सेवन को मिला A को, B को मिला 8, D को मिला 8 minus 3 is
5 एंड सी को मिला 10। हाँ हो गया। अगर ए को सपोज हम लोग 10 ए मान 7 मान के चलता है तो बी को कितना मिला, बी को +1 मिलेगा, है कि नहीं। तो बी को अगर +1 मिलेगा तो ए गेट्स 1 लेस देन बी, तो 1 लेस देन बी में 7 मिला या बी को 8 मिला, ठीक है। सी गेट्स 5 मोर देन डी, सी गेट्स 5 मोर देन डी, सी गेट्स 5 मोर देन, तो अगर हाँ उसके स्टेटमेंट बाद में आएंगे, ये वाला देख रहे डी गेट्स 3 मोर देन बी, और डी को 3 बी से डी गेट्स 3 मोर, अच्छा ओके ओके ये गलती होगी मेरे से, डी को कितना मिला 3 मोर मिला बी से, तो 8 9 10 11, ठीक है। एंड सी गेट्स 5 मोर देन डी, सी को 5, तो 5 से 11 + 5 इज 16, ठीक है। तो वो हो गया 10, ए गेट्स 10 ए। आगे चलते हैं। 13 देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड विद द रूट्स डायरेक्टली। अच्छा ये तो एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा। आगे चलते हैं। Which of the mode of transport would help one to reach our study? Okay, there are five cities P, Q, R, S, T are connected by different modes of transport as the following. P and Q are connected by boat as well as rail. Okay, P and Q तो ये बना लेते हैं ना, P and Q यहाँ बना लेते हैं, P and Q रेल, रेल एंड बोट। Q and T, Q and T देख लेते हैं इज बाय एयर, एयर ठीक है। Q and T, T and R बाय रेल एंड बस, T and R, R बाय रेल एंड बस। तो मैं एक एक छोड़ के जा रहा हूँ, पहले मैंने ये पकड़ा फिर मैंने कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आर, आर एंड पी आर कनेक्ट, आर एंड पी, आर एंड पी यहाँ पे आर कनेक्टेड बाय बोट, ओके बोट। एंड आर एंड पी, क्यू एंड टी हो गया। एस एन आर, एस एन आर, तो एस एन आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टेड है, बस एंड रेल, बोट, बस एंड बोट, एस एन आर, बस एंड बोट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। विच ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर, ओके, फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू to the Q but without changing the mode of transport, okay। अच्छा, so P and Q is boat and rail, air, Q and T, Q and T air only, P and R बोट, बोट Q से P तक जाएगा बोट में एंड बोट P से फिर R में आएगा बोट में। 11A, if the person visits each of the places starting from P and gets back to P, which of the following places he must visit twice? Obviously P Q T या P Q हर एक प्लेस में S R को 2 बार विजिट करेगा, R जाएगा फिर S जाएगा फिर R आएगा, 2 बार R को विजिट करना पड़ेगा। 12B। आगे चलते हैं। पहले इजी आता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज आर कनेक्टेड बाय एनी अदर रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। P and T, following pairs of cities are connected by any of the routes directly, डायरेक्टली तो नहीं है ना, रेल बोट फिर एयर है। टी एन एस भी नहीं है, बस रेल बस बोट। क्यू एन आर,
क्यू एन आर भी नहीं है, एयर, फिर बस without going to any other city, बिना किसी सिटी के जाए हुए तो पी एन टी तो कनेक्टेड नहीं है, टी एन एस भी नहीं है, आर एन एस हो सकते थे, नन ऑफ दिस। 13D पढ़ लेना दो बार, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। बिटवीन द टू सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी गिवन बिलो आर द मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल। क्यू एन एस, क्यू एंड एस, अच्छा सबसे ज़्यादा किस में है, तो क्यू एन एस में कितने हैं देख लेते हैं। क्यू एन एस में क्यू से एयर 2 3, एक एयर बस रेल बोट 1 2 3 4, या क्यू एन एस रेल बोट बोट, तो बोट बोट 1 2 3, 3 या 4 है इसमें, ठीक है 3 या 4। पी एन आर, पी एन आर में तो बस से हट नहीं हो सकता, मैक्सिमम पूछा ना, मिनिमम पूछा होता। तो पी एन टी रेल बोट एयर, नहीं 3 है इसमें, पी एन टी भी नहीं होगा। क्यू एन आर, क्यू एंड एस, एयर, एयर बस रेल, रेल बोट, क्यू एन एस, तो क्या इसमें चारों आ जाते हैं क्योंकि एयर बस रेल बोट चारों आ गए। 14 है। आगे चलते हैं। टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स फॉर द फोर्थ कमिंग, द 4 ऑफ दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, मेल्स ए बी सी, फीमेल्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी बट एटलीस्ट, इसको मिटाते हैं फटाफट, आगे चलते हैं। इसके बाद और 4 हैव इक्वल कैपेबिलिटीज़ एंड एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। ओके, तो 2 मेल्स तो हमेशा रहेंगे फॉर अ टीम 4 प्लेयर्स। अच्छा, तो हैं टोटल 7 लोग, तो 4 और 3 की टीम बनेगी जिसमें 2 मेल्स तो रहेंगे, इसमें भी 2 मेल्स रहेंगे और इसमें 1 फीमेल रहेगी, इसमें 2 फीमेल रहेंगी, ठीक है। और एटलीस्ट 2 मेल्स, एटलीस्ट मिनिमम तो 2 रहने चाहिए, से कम नहीं हो सकते। विल बी देयर फॉर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर, 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर बट B cannot play with W, C cannot play, B cannot play with W, तो B अगर इधर नहीं आएगा तो W इधर ही आएगा ना, क्योंकि लड़की लड़का हो गए, ठीक है। C cannot play with Z, तो C भी एक आदमी है, ठीक है। C और Z, यहाँ पे C आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी आ गया, C and Z, ठीक है। C cannot play with Z and W cannot play with Y, W cannot play with Y। अच्छा, तो W अकेला रहेगी वहाँ पे, यहाँ पे Y आ गया, तो B C, A B C D, तो A यहाँ पे भी आ सकता है, A यहाँ पे भी आ सकता है। If Y is selected and B is rejected, if Y is selected and B is rejected, the team will consist of, B को Y को सेलेक्ट कर लिया है एंड B को रिजेक्ट कर दिया, तो टीम कौन सी बनेगी, तो Y W के साथ नहीं खेल सकता, तो Y Z तो रहेंगी, तो टीम में उस टीम में कौन कौन रहेगा, तो Y तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, और Z भी रहेगा, Z के साथ ही बन सकती है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। और B को हटा दिया है, अगर B को हटा दिया है तो A आएगा एंड Z W Z, C कैनॉट प्ले विद Z, तो C तो आ नहीं सकता Z के साथ, तो यही आएगा A W भी नहीं आएगा ना, B को रिजेक्ट कर देते, A D आना चाहिए था, A C
सी तो नहीं आ सकता ना, हम मना कर दें, सी कैन नॉट प्ले विद जेड। सेलेक्ट विद देन द टीम विल कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ए डब्ल्यू भी नहीं आ सकता है, बी को रिजेक्ट कर दिया तो बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू। अच्छा बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, ओके ओके ओके, बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता ना, तो ए भी आ जाएगा, जेड वाई डब्ल्यू, जेड वाई जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई जेड, हाँ ए डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है। डी 15D, उसने बोला है कि डब्ल्यू बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, तो बी तो हटा ही गया, तो बट बी कैन प्ले विद जेड एंड वाई। अगर जेड एंड वाई के साथ बी जेड एंड वाई के साथ डब्ल्यू आ सकता है तो डब्ल्यू जेड वाई, और एक कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि सी कैन नॉट प्ले विद जेड, तो सी तो वैसे भी नहीं आ सकता, सी जहाँ पे है वहाँ पे हटा दो। आगे चलते हैं, इजी था ये। इफ़ बी इज सेलेक्टेड एंड वाई इज़ रिजेक्टेड, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बी को सिलेक्ट कर लिया है, अच्छा, एंड वाई को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो कौन होगा, तो बी के साथ डब्ल्यू नहीं आ सकता है, तो जहाँ डब्ल्यू है काट दो उसको, ठीक है। अब बी को सेलेक्ट कर दिया है, तो ए बी सी ये तो ठीक है, ए बी सी, जेड या जेड के साथ आई थिंक सी नहीं आ सकता है, एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ था जेड के नॉट प्ले विद सी, आई थिंक देख लेते एक बार, ये ऊपर जाने में टाइम लगता है। सी के नॉट प्ले विद जेड, हाँ अगर सी के नॉट प्ले विद जेड तो सी को हटा दो वहाँ से, सी को हटा दो वहाँ से, सी के नॉट प्ले विद जेड, तो ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स 16C। सो बी को हटा दिया, तो बी को हटा दिया तो बी के साथ, सॉरी वाई को हटा दिया तो बी आ गया, तो बी के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है, और जेड के साथ सी नहीं आ सकता, एक्स, ठीक है 16C बिल्कुल सही सही आंसर है ये। आगे चलते हैं। इफ़ ऑल 3 मेल्स आर सेलेक्टेड, तीनों मेल्स को सेलेक्ट कर लिया, अच्छा, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 4 मेंबर्स, ए बी सी एक्स, मेल्स तो कितने, 3 ही तो हैं, ए बी सी तो हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू ए बी सी तीनों को सेलेक्ट कर लिया, और बी के नॉट प्ले विद डब्ल्यू, तो एक तो गया, सी के नॉट प्ले विद जेड, ठीक है, डब्ल्यू के नॉट प्ले विद वाई, ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन ए बी सी डब्ल्यू एंड ए बी सी, सॉरी ए बी सी डब्ल्यू नहीं होगा और जेड नहीं होगा, ए बी सी एक्स एंड ए बी सी वाई, 2 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 2 कॉम्बिनेशन 17B, 17B। आगे चलते हैं। The music director wants to select 4 people to work in a different aspects of the combination of pieces of work, अच्छा तो ये बैठाना है। 7 people are available for the work, they are रोहित, तानिया, शोभा, कौशल, मुकेश, जसवंत, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये 7 लोगों को सेलेक्ट करना है। म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म वांट्स टू सेलेक्ट 4 पर पर्सन टू वर्क इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ पीस। 7 पर्सन है, ये लोग हैं, एंड रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टुगेदर, रोहित एंड तानिया साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेंगे, चलो नहीं करवाते। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, कुणाल एंड शोभा नहीं काम करेंगे साथ में, ठीक है नहीं करवाएंगे जी। एंड मुकेश एंड कुणाल विल नॉट एंड वर्क टुगेदर, मुकेश एंड कुणाल को, मुकेश एंड कुणाल एंड कुणाल, मुकेश एंड कुणाल विल नॉट वर्क टुगेदर एंड मुकेश एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप द पीपल, अच्छा तो रोहित आ गई, रोहित आ सकता है, रोहित शोभा के साथ भी आ सकता है, कुणाल आ सकता है, कुणाल नहीं आ सकता, कुणाल आएगा तो शोभा काम नहीं करेगी, तान्या आ सकती है बिल्कुल, कौशल आ सकता है,
कौशल 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 कहीं नहीं है, कौशल भी आ सकता है बिल्कुल। शोभा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। रोहित एंड तानिया नहीं काम करेंगे ना फिर दोबारा, बोला ही गया है, रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क। सो रोहित एंड तानिया यहाँ पे भी काम नहीं करेंगे दोनों का। तानिया, मुकेश, कुणाल, जसवंत, सी 18C। तो इजी था यार। अब आगे 5 person ABCDE आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, ईच चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, राउंड टेबल में बैठे, राउंड टेबल में बिठा देते हैं। टाइम देख लेते कितना हुआ है। मैं क्रोनोलॉजी जा रहा हूँ, छोड़ छोड़ के चला तो और कर लेता, बट ठीक है कोई बात नहीं, 20 मिनट बाकी हैं अभी भी। C इज सीटेड नेक्स्ट टू A। राउंड टेबल बनाओ पहले यार, ये रही राउंड टेबल बन गई। C को बिठाओ नेक्स्ट। C इज सीटेड 1 2 3 4 5। ठीक है, C is seated next to A. E is seated 2 seats away from D. B is not seated next to A. अच्छा ठीक है, इजी है ये तो। C is seated next to A. A is seated 2 seated. A is seated 2 seats away from D. A तो 2 seats, 1 2 D। ठीक है, इधर से राइट की तरफ से चल रहे हैं ना। C is seated next. C is seated next to A. यहाँ भी आ सकता है। B is not seated next to A. Not seated next to A. A B C D E. This combination is possible. और 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे यार, ये बहुत ही झमेले वाला होता है। दोबारा A को यहाँ बिठा देते हैं। A तो 2 seats 1 2। अब लेफ्ट से घुमा देते हैं, 1 2 D। D is seated 2 seats away। हाँ ठीक है, यहाँ बिठा दिया। अब A अब यहाँ भी बैठा हुआ था C, दोबारा C को यहाँ बिठा देते हैं। तो सो C इज सीटेड नेक्स्ट सीट्स टू A। यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बैठ सकता है ना। एंड B इज़ नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A, तो B इज़ यहाँ पे A B C D E यहाँ बिठा देते हैं। बहुत सारे कॉमन सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। D इज सीटेड नेक्स्ट टू B, तो C को यहाँ बिठा दूंगा। D इज सीटेड नेक्स्ट टू B तो 100% होगा। E इज सीटेड नेक्स्ट टू A। E इज सीटेड, अगर मैं सपोज E C को यहाँ बिठा दूँ, नहीं ये भी सी है, बोथ 1 and 2 होना ही पड़ेगा ना। कहाँ बिठाओगे? 19C। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते फटाफट। एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द 3 items दैट फॉलो। Out of the four friends A B C D, A and B play football and cricket, B and C play cricket and hockey। अच्छा तो 4 स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के नीचे लिख देते हैं क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, हट क्यों जाता है ये फुटबॉल। ठीक है, A and B play football and cricket। A and B, A play cricket, B play cricket, A and B play football, A and B play football and cricket। ठीक है, B and C play cricket and hockey। B तो क्रिकेट खेल ही रहा है, एंड C भी, A B C, C भी क्रिकेट खेल रहा है एंड हॉकी भी खेल रहा है B। A and D play basketball and football। A and D play, A भी यहाँ खेल रहा है बास्केटबॉल एंड D भी यहाँ खेल रहा है बास्केटबॉल, एंड A and D play बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो A तो पहले से फुटबॉल खेल रहा था, D भी खेल रहा है फुटबॉल अब। ठीक है, C and D play हॉकी एंड फुटबॉल। C and D play हॉकी, तो C पहले से भी हॉकी खेल रहा था, तो अब D भी खेल रहा है हॉकी, एंड C and D play हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल पहले D खेल ही रहा था, तो अब C भी खेल रहा है। ठीक है, Who does not play hockey? Who does not play hockey? So A भी नहीं खेल रहा, B भी नहीं खेल रहा हॉकी। तो जब B and C play cricket and hockey, B and C play cricket and hockey, तो A नहीं खेल रहा हॉकी। तो ठीक है, 20A।
बहुत इजी है. Who plays football, basketball and hockey? Who plays football? So A plays football, basketball. नहीं, A plays cricket नहीं होगा. D 21 D. D plays football, basketball and hockey. D because he doesn't play cricket. 21 A. आगे चलते हैं. जल्दी जल्दी चलो. Who which game do BCD play? Which game do BCD play? BCD play hockey. BCD play hockey. 22 B. B. ठीक है, आगे चलते हैं. Geeta is older than her cousin Meena. Meena's brother is older than Geeta. But when Meena and Bipin visit Geeta, they like to play chess. Meena wins the game more often than Geeta. Based on the above information, ठीक है. While playing chess, Geeta and Bipin Meena often loses. Geeta is oldest. नहीं हट, ये नहीं कर रहे, छोड़ो. अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको. So according to passage पूछा गया, the financial market in the emerging market economy including India had adverse impact in the recent years due to. तो 2014 की बात कर रहा है. क्यों हुआ था recent impact फाइनेंशियल मार्केट में? वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बिल्कुल हो सकता है. अनसर्टेनिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंस, सोवेनियन रिस्क कंसर्न्स इन यूरो एरिया, बैड मानसून्स एंड. फाइनेंशियल मार्केट से मानसून्स का क्या रिलेशन? रिजल्टेंट क्रॉप देख लेते हैं. द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल चेंजेस मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन. द फाइनेंशियल मार्केट अफेक्ट क्यों होता है ग्लोबल चेंजेस से? इंक्रीज इन फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इनॉर्मस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, growing global linkages and integration of Indian financial market, contagion of Greece sovereign debt more. देख लेते हैं. According to the passage, whether in the Indian financial system, banks' ability to withstand stress is critical to ensure overall financial stability because Indian financial system is. पैसेज के द्वारा इंडिया फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम जो है बैंक का जो एबिलिटी है स्टैंड स्ट्रेस को स्टैंड करने का, ये क्रिटिकल है कि ये इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, लेस इंटीग्रेटेड एंड डोमिनेटेड बाय कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, लेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई होगा आई थिंक. Management assumes more importance in the Indian banking system in further due to risk and liquidity. Management assumes more importance in the Indian banking system. Globalization, more consolidation, deregulation of the financial systems, further diversifications of the financial system, more financial inclusion in the economy. There are 5 hobby clubs in the college: photography, gardening. The gardening group meets every second day, meet every third day. The chess groups meets every fourth day. The fifth day meets every sixth day. How many times do all 5 groups meet on the same day within 180 days? तो कितने ग्रुप है? 5. 5 3 are 15. 3 are 15. 36. Three days. 28A. बाकी का एक बार देख लेते हैं.
एलसीएम निकाला इन लोग का, फिर इनका एलसीएम निकाल के इसे डिवाइड कर दिया, तो 3 दिन में मिलता है। अभी ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार, टाइम देखते हैं जरा, 12 मिनट बचेंगे, 5 तो हो ही जाएंगे। Financial market in India have acquired greater depth and liquidity over the years. Steady reforms since 1991 led to the growing linkages and integration of the Indian economy and its financial system with the global economy. Steady reforms की वजह से growing linkages and integration की वजह से weak global economic prospects and continuing Indian financial markets have had their impact on the emerging economy. Sovereign risk concerns, particularly in the euro area, affected the financial market for the greater part of the year, with the contagion Greece sovereign debt problems spreading in India and other economies by way of higher than normal levels of volatility. The funding constraints in international financial market could impact both the availability and the cost of foreign funds for banks and corporates. Since the Indian financial system is bank dominated, banks' ability to withstand the stress is critical to overall financial stability. Indian banks, however, remain robust, notwithstanding a decline in the capital to risk weighted assets ratio and a rise in non-performing assets level in the recent past. However, remain robust and notwithstanding decline in capital adequacy levels remain above the regulatory requirement. The financial market infrastructure continues to function without any major disruptions. With the further globalization, consolidation, deregulation, and diversification of financial system, the banking business may become more complex and riskier. Issues like risk and liquidity management and enhancing skill therefore assume greater significance. Acha. According to the passage, the financial market in the emerging market economies, including India, had adverse impact in recent years due to weak global economic prospects, uncertainty in the international market, sovereign risk. ये चारों ही हैं. Bad monsoons and resultant crop. 1 to 3. 24B. 24. 28A. 23. 24B. 25. देख लेते हैं. The Indian financial market are affected by the global changes mainly due to the enormous increase in foreign exchange. Increase in inflow in almost global changes mainly due to continuing uncertainty. रेमिटेंस की बात करें नहीं, ये भी नहीं, ग्लोबल लिंकेजेस की भी बात नहीं करी, enormous increase in foreign exchange reserves भी नहीं किया. D 25D. According to the passage, in the Indian financial system's ability to ensure withstand stress is critical to ensure overall financial stability, because Indian financial system are dominated by banks. ये लिखा भी हुआ है. Since Indian financial system are dominated, banks is bank dominated. Dominated by banks. 26D. Risk and liquidity management assumes more importance in Indian banking system in further due to more diversification or more financial inclusion in economy. Risk and liquidity management assumes more importance in Indian banking due to further globalization तो है ही, more consolidation and deregulation of with further globalization, consolidation, diversification of the financial system.
underscore uh, globalization, consolidation, and diversification of financial system. One, two, three. 27A. पहले के तो इजी होते थे आई थिंक. आगे चलते हैं. ABCD belong to 5 different cities PQRST. Each of them comes from a different city. Further, given that a different city, further it is given that BC do not belong to Q, BE do not belong to P and R. P, Q, R, S, T. So ABCD belong to B and C do not belong to Q. Okay. B and E belong to P and R. E do not belong to E and R. A and C do not belong to RST. A so P से है C. D and E do not belong to Q and T. D and E do not belong to Q. Q से A. Q RST से नहीं है. P Q R से क्या होगा? R से होगा T is for B. R P Q R S. R A B C D. D E. These are finally not correct. C belongs to P. C belongs to P, correct. D belongs to R. So R. A belongs to Q. B belongs to S. 29 D. 7 when A, B, C, D, G are standing in a queue in order such that each of wearing is a cap of different color. D is able to see in front. See in front of him green and blue.
कर लेते हैं। See in front of him green and blue D. Minerals are deposited and do not get completely decomposed because they are constantly washed by the ocean, become rock and prevent. थर्टी टू बी लिखा हुआ है ये रहा। क्यों नहीं बन सकते, बिकॉज रॉक प्रिवेंट ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ मिनरल बिकम सेडिमेंट्री एंड शट्स द ऑक्सीजन आउट ऑक्सीजन प्रिवेंटिंग। ठीक है, sedimentary rocks leads to formation of oil deposit because ओके सो टाइम इज़ अप नाउ। सो हम लोग ने अराउंड 32 तक क्वेश्चंस किए थे, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सो पास मार्क्स अगर आपको क्वालिफाई करना है 27 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको करने ही पड़ेंगे, और हम लोग ने 28 क्वेश्चंस करे हैं 1 घंटे में, 1 आवर में। एक और घंटा मिलता तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 20 और मान के चलते, 50 के करीब क्वेश्चंस और कर लेते। तो 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन इज़ फाइन, जिसमें कि इससे आप ये पेपर भी कि कंपेरेटिवली इजी था, जो वैसे भी आता है आपका यूपीएससी के सीसैट में। तो व्हाट वी गोना डू इज़ वी गोना चेक दिस आंसर्स, एंड हम लोग दोबारा आंसर्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो प्रॉपर 2 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि कैसे हम लोग को और बेटर तरीके से आंसर करना है, क्योंकि लेवल ऑफ टफनेस सीसैट में बढ़ रहा है, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। सो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ये जो 32 क्वेश्चन तक हम लोग ने अटेम्प्ट करे हैं, एंड सॉल्यूशंस के साथ साथ कि कैसे मैंने आंसर डिराइव किया। उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी जिसमें हम लोग वो ये सॉल्यूशन वाली वीडियो आज शाम को ही आपको मिल जाएगी, एंड कल हम लोग जो दूसरा टेस्ट करेंगे वो पूरा 2 घंटे का ही अटेम्प्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, जिसमें से आपके 10 भी गलत हो जाते हैं एंड बाकी अगर 45 या 40 क्वेश्चन भी सही रहते हैं, तो हाउ यू कैन ईजिली क्वालिफाई द सीसैट।